I mean, on behalf of the Impact Group India Verticals, I welcome you all to this Learners Hour session, a session that we have every Saturday morning. We definitely try and have every Saturday morning. And primarily, we do this especially internally for the benefit of us to learn, because I think, learning is a process which is there for life. And then we should never stop learning. The day you stop learning, I don't know what else to expect from life. So we do this, and once a month we invite our guest speakers. And today's guest speaker is a very good friend of mine, Mr. Hariharan Iyer, and I call him Hari lovingly, and people have a lot of regards to him in the training fraternity. And it gives me immense pleasure to be having invited Hari to this session today to empower us. Hari Saab, it's a team, it's a family of great learners. So I'm sure you will enjoy imparting your knowledge sharing today. A little brief introduction. Well, it cannot be brief when I speak about Hariharan Saab because he's achieved so much in life. But I'll do a little brief. He's obviously a seasoned corporate trainer. He's got into this profession for now over 2 decades. So you can imagine he's a very seasoned professional motivational speaker. And despite being the seasoned campaigner that he is, I haven't seen a person as humble as Hariharan Saab. And that is the humility he brings on stage, on board, and in his conversation. And that is what we're going to find out even today. He is rightly called the Entertrainer. And in fact, he does a certification program on the Entertrainer itself. So, he is a recipient of the Rex Karamveer Chakras and Karamveer Puraskar Awards. So it can't be, it can't be better to have someone like Hariharan Saab speak to us, an internationally certified trainer from Ascentive, USA. He's also an author. He's authored around 9 books, and that shows how much of wisdom sharing that he brings on board. He's an author of 9 books and over 180 blogs. A very active YouTuber. He loves to sing. He loves to narrate stories about successful sports people, film stars, once this event is over, you may want to connect with him socially as well on the social media. So, and you'll follow him and find out a lot more. He's done, sessions for prestigious companies such as Rolls-Royce, Tata AI Life Insurance, Cipla, Howard Johnson, to name a few. And there are hundreds of those. And what a pleasure to have Impact Group added to that list. So truly a great occasion for us. And Hariharan Saab, I would not waste more time. The stage is all yours. We are all listening, and we all are eagerly waiting to hear from you. Thank you. Thank you, Alan. It's absolutely an honor and a delight that you have invited me. Thank you for all the wonderful words. And so a mix of English and Hindi is fine? Yes, absolutely. So that I know that people are here and they're going to be with me, can I request as many of you as possible to be on video? कोशिश करें कि आप वीडियो में रहे so that मैं आपको देख के बात कर सकता हूँ. I'm very uncomfortable if people are not on camera. फिर पता नहीं वो साइड में खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, फिर वो लग रहा है कि ये स्पीकर आया है, पका रहा है, अपन कुछ और करते हैं. So just be with me. And I'll be grateful if you are on camera unless there is a bandwidth problem. Also, जैसे मैं बोलता जाऊंगा, as I keep speaking, I would request you कि आप थोड़ा chat box को use करें. Maybe last 5 minutes we can have some comments from you if you want. And you can use the chat box and you can just share your perspective about whatever I'm going to be speaking about. You can agree, you can disagree, you can challenge, you can question, you can do whatever you want. That's not a problem. So are you all with me? Can I have a good morning in the chat from all of you? Yeah. So can I have a good morning in the chat?
It's a nice way to see how many people are with us. Yeah, thank you so much. Mustafa ji, Sunil Saab, Narul Saab, thank you so much. Nurul Saab, thank you so much. Wonderful. So let's try and make this a very engaging session. मुझे पता है कि एलन साहब आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, छोड़ते नहीं है, मेरे को भी नहीं छोड़ते. So, but I think it's a great initiative to keep learning in life. Thank you so much for that. Wonderful. So today Alan has requested me कि success के बारे में कुछ बात किया जाए. और 14 साल पहले when I started my company, Hariharan School of Success Education. So the name success is in the company name. So I'm very fascinated by the subject of success. And I'm very fascinated by the whole concept of success. I do a lot of reading on trying to find out what makes different people successful at in different spheres of life. So cricket, Bollywood, films, singing, cinema, it's fascinating. So जिंदगी में हमारे साथ होता क्या है कि हम बस अपना काम करते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, घर चले जाते हैं, जिंदगी बड़ी बोरिंग हो जाती है. और जिंदगी क्यों बोरिंग हो जाती है? क्योंकि हम कुछ ज्यादा पढ़ते नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसे हो, बट जनरल मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि लोग पढ़ते नहीं है, कुछ नयापन नहीं होता लाइफ में. बस and the most Alan, the most dangerous question in life to ask anybody is how is life. अगर आपने गलती से किसी से पूछ लिया जिंदगी कैसी है, तो बोलेगा अरे क्या पूछ लिया तुमने यार, मतलब कुछ और पूछ लेते. क्या होगी, कैसी होगी जिंदगी, कट रही है, चल रही है. So that's not what life is. That's not what life is meant to be. So are you all ready to absorb some very wonderful insight which I'm going to try and share? I hope you find it wonderful. I'm putting it all together from my experience. No PPT presentation, just a simple talk, a simple discussion. So if you are all ready, let's get started. So success क्या है? Would you like to put in the chat what according to you is success? आपको क्या लगता है कि success क्या होता है? You can share your thoughts so that you'll give me some kind of a ground and a starting point to start talking about this very important subject. क्योंकि हम लोग रोज सुबह को उठकर काम पे इसलिए जाते हैं ताकि हम जिंदगी में सक्सेसफुल बन सके. हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, पढ़ाई कराते हैं, because we want them to be successful in life. Everybody wants to be successful in life. So what is according to you success? Satisfaction. Okay, wonderful. What else? Because success can mean different things to different people. It is achieving something that you desire. Okay, wonderful. Yeah, I like that. Something which achieving something which you desire. Right. So let me talk about desire first. Okay, so that's a very good starting point to kind of steer our conversation today. Successful people, positive feedback. Okay, yeah. When people give you positive feedback, that means you are successful. Yeah. A lot of people give me negative feedback also. जैसे एलन ने बहुत अच्छी बातें की मेरे बारे में, कुछ लोग मुझे बहुत अच्छी दूसरे तरीके से भी बताते हैं. So that does not mean I am not successful. So it's okay. You get both. जिंदगी में सारे लोग आपसे प्यार नहीं कर सकते. अगर सारे लोग आपको जिंदगी में प्यार करते हैं तो there is a problem with you. Why is everybody loving you? है ना? अच्छा आदमी भी तुमसे प्यार करता है, बुरा इंसान भी तुमसे प्यार करता है. अगर सारे लोग तुमसे नफरत करते हैं, then also the problem is with you. How come everybody is not loving you? So ऐसा नहीं होता है लाइफ में. It's a package deal. So हम desire से शुरू करते हैं. So what I have realized in life is that just having a desire is not ever going to make you successful. If you see 100% people in this world, everybody has desire. But hardly 20% people achieve what they want. Okay, there are many people who try, but they can't make it because finally it is in God's hands. किसको क्या मिलना है? Not everybody is able to get what they want. But I make a distinction between desire and aspiration. They both are not the same. Everybody has desire, but very few people have aspiration. So what's the difference? Desire is wishful thinking. I am hoping, I wish I'll become famous one day. I wish I will make a lot of money one day. I wish
that this will happen to my life. I will own a big car one day. I will have this facility, that luxury. This is a wish. One day I will become vice president in my company. This is a wish. It's a desire. But people who aspire to be vice president in the company or become the CEO or become something of a very substantial nature within the organization or make a great success out of your career, they are committed to fulfilling that desire. They take action. So this is the difference between people with desire and people with aspiration. Only those people who have only desire, they are hoping and waiting that things will happen. They are praying that things will happen. But people with aspiration are those who will take action. They will work towards it. So in life, it's not enough to have desire. Desire is a starting point. But in life, what you need is aspiration. Aspiration means people who have ambition, people who are ready to put in the effort to make things happen, people who want to take action. Everything in life is action orientation. Success is action orientation. Success is not just knowing something. Success is implementing what you know. So I always like to give this example of किसी ने लाइफ में जिंदगी में डिसाइड किया अगले 3 महीने में मुझे 10 किलो वजन घटाना है. ऐसे कई लोग हमारे देश में ऐसे बढ़िया डिसीजंस लेते रहते हैं संडे मॉर्निंग को और ये सोचते हैं कि मंडे से हम रोज वॉकिंग जाएंगे. वो मंडे आता है, ये आदमी उठता नहीं है वॉकिंग जाने के लिए. वो 9 बजे उठता है तो कैसे जाएगा वॉकिंग. सो मुझे पता है वजन कैसे घटाना है, मुझे पता है सक्सेसफुल कैसे बनना है, मुझे पता है खुश कैसे रहना है, लेकिन हम वो एक्शन या इंप्लीमेंटेशन नहीं करते जिससे हमें खुशी मिले, हमारा वजन घटे, हम सक्सेसफुल बने. सो नोइंग इज नथिंग, डूइंग इज एवरीथिंग. सिर्फ मालूम होने से कुछ नहीं होता है, आपको एक्शन लेना पड़ता है. ये जिंदगी में सबसे जरूरी प्रिंसिपल है जो हमको लाइफ में सीखना पड़ता है. अच्छा, सबको पता है कि किताबें पढ़नी चाहिए. किताबें पढ़ने से हमारा बौद्धिक शक्ति बढ़ता है, इंटेलेक्चुअली हम ग्रो करते हैं, हम अच्छा इंसान और बन सकते हैं, हमारी अच्छी जानकारी मिल सकती है, वी कैन हैव बेटर कॉन्वर्सेशन. लेकिन लोग पढ़ते नहीं है. तो जानना कि मुझे पढ़ना है और एक्चुअली पढ़ने में बहुत फर्क है. ये जानना कि मुझे वजन घटाना है और एक्चुअली वजन घटाने के लिए जो कार्यक्रम करना होता है वो करना, वो दोनों अलग चीजें होती है. राइट. सो एक चीज जो मैंने सक्सेस के बारे में जाना वो ये है कि कंफर्टेबल लोग जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं बनते और ख्वाहिश यही रहती है कि मेरा जिंदगी कंफर्टेबल रहे. बट सक्सेस एंड कंफर्ट नेवर गो टुगेदर. ईदर यू आर कंफर्टेबल और यू आर सक्सेसफुल. If you are successful, you are not comfortable. That's why you are successful. And if you are comfortable, you are never going to be successful. I compliment all of you. On a Saturday morning, on a weekend, you are ready to put aside your comfort and come and attend a learning session. Successful इंसान का सबसे बड़ा निशानी ये होता है कि वो पढ़ना चाहता है, वो सीखना चाहता है. वो कभी भी जिंदगी में अपना सीखने का जो दौर है कभी खत्म नहीं करता. Now, some of the richest people in the world, people like Bill Gates, people like Warren Buffett. मैंने कहीं पे पढ़ा था अगर आज बिल गेट्स लाख रुपया खर्चा करना शुरू करे, आज से उनका इनकम को रोक दिया जाए, आगे से अभी बिल गेट्स को बोला जाए 1 रुपया तुमको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, बहुत कमा लिया तुमने, चलो तो अभी रोज तुमको खर्चा करना है. 1 लाख रुपया अगर वो रोज खर्चा करेंगे तो उनका ये पूरा पैसा 125 साल के बाद खत्म होगा. He will exhaust, I don't know whether this is the exact data, but I'm somewhere on these lines, somewhere I read, it will take 125 years to exhaust his money. और लोगों को लगता है पैसा कमाना सक्सेस होता है. सबसे बड़ी गलतफहमी जिंदगी में ये होती है कि पैसा कमाना सक्सेस होता है. तो बिल गेट्स जैसा इंसान हर महीना वो एक नया किताब पढ़ता है, शायद हर हफ्ता ही पढ़ता होगा. Now, why would a Bill Gates want to read one new book every month when this man is one of the richest people in the world? He's so successful. So it's not about money, friends. It's about growing yourself as a person.
सो एक बहुत अच्छी किताब है जो, तो मैं जो भी किताबों का रेफरेंस देता रहूंगा उसके ऊपर थोड़ा आप नोट्स बनाना, ध्यान रखना, खरीद के पढ़ना। 9 किताबें मैंने भी लिखी है, अमेजोन पे जाके ढूंढ लेना, एक हाथ पढ़ लेना मेरा, मैं भी अच्छा ही लिखता हूँ। हाँ। ओके, सो एक हाथ मेरा भी पढ़ लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सो तो एक किताब है, टी हार्व ईकर, द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड। ईकर इज द ऑथर, द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड, एंड ही सेज you can grow your income only to the extent that you do. You can grow your income only to the extent that you do. आप अपना इनकम उतना ही बढ़ा सकते हैं जितना आप अपने आप को अंदर से बढ़ाते हैं। आपका इंटरनल ग्रोथ जितना होगा उतना ही आपका एक्सटर्नल मनी ग्रोथ होगा। लोग बोलते हैं मुझे मिलियनर बनना है, करोड़पति बनना है, फिर मिलियनर के हैबिट्स आने चाहिए आपके अंदर, मिलियनर की सोच आनी चाहिए। मुझे करियर में ये बनना है वो बनना है, तो अब फिर वो आपके बॉसेस का जो हैबिट्स है, उनके अच्छे हैबिट्स जो हैं, उनके आपके सीनियर्स के जो अच्छे क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज को आपको आपके अंदर लाना पड़ेगा। सो सक्सेस में हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान को 5 बजे उठकर 5 AM क्लब ज्वाइन करना चाहिए, मैं खुद नहीं उठता तो मैं क्या दूसरों को बोलूं। ओटीटी के वजह से कोविड के बाद हम मजे से 1-1:30 बजे तक वेब सीरीज देखते हैं, तो 5 बजे कैसा उठेगा भाई आदमी? मैं तो नहीं उठता, लेकिन मेरा अपना कुछ हैबिट्स बना हुआ है। तो आप अपने तरीके से अपने हैबिट्स बनाइए। मैं ये नहीं बोलता कि ये 10 हैबिट है जिंदगी में जो सभी को फॉलो करना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने 10 हैबिट बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ऑफकोर्स आपको ऑफिस टाइम पे पहुंचना होता है, वो एक चीज तो कंपलसरी है, बट बाकी आपको कब पढ़ना है, कब उठना है, कब एक्सरसाइज करना है, कब मेडिटेशन करना है, कब क्या करना है, आपके कब म्यूजिक सुनना है, दैट इज अप टू यू। यू डिजाइन योर ओन हैबिट्स, design your good habits. So Brian Tracy, one of the most amazing motivational speakers and sales trainers जो आपको दुनिया में मिलेंगे, वो ये कहते हैं, good habits are difficult to form, but they make your life easy. Bad habits are very easy to form, and they make your life miserable. Good habits are easy to form, difficult to form, but they make your life easy. Bad habits are easy to form, but they make your life miserable. और आप देखेंगे जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो आपसे एक बात कहते हैं कि पैसे के पीछे मत जाओ, अपना हेल्थ संभालो। सबसे पहला अपने आप को देखो। अब कितना भी पैसा आ जाए जिंदगी, अगर मेरे पास हेल्थ नहीं है, मेरे पास अच्छा हेल्थ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा जिंदगी? सो जैक मा, जो alibaba.com चलाते हैं और दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग स्पीकर्स दैट आई हैव सीन, जैक मा सेज, अगर आप बंदर के सामने केला फेंकोगे और पैसा फेंकोगे तो बंदर केला उठाएगा। उसको यह समझ नहीं है कि अगर मैं पैसा उठाता हूं तो मर्जी जितना चाहे केला खरीद सकता हूं। आप अगर इंसान के सामने हेल्थ और पैसा फेंकोगे, आदमी पैसा उठाएगा, उसको यह समझ नहीं है कि अगर मैं हेल्थ उठाता हूं तो जितना चाहे जिंदगी में मैं पैसा कमा सकता, अगर हेल्थ साथ दिया तो सक्सेसफुल लोगों को एक बात समझ में आती है कि प्रायोरिटी क्या है जिंदगी की। हम लोग ना दुनिया में आजकल पगला गए, सब लोग एलन साहब सभी पगला गए, सोशल मीडिया में अपने आप को बड़ा बताते, दुनिया को अपने बहुत बड़ा बताते। आज एलन साहब ने जो भी मेरे बारे में कहा वो सब सच, वो 100% सच है, उसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। लेकिन लोग एग्जैजरेट भी करते हैं, वो दिखाते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। इफ यू फेक इट टिल यू मेक इट, बाय द टाइम यू मेड इट, यू हैव ओनली बिकम फेक।
नथिंग इज जेन्यून अबाउट यू। आजकल पता ही नहीं चलता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सच क्या है झूठ क्या है। लोगों को लगता है मुझे बहुत फेमस बनना चाहिए, मेरे इतने दोस्त होने चाहिए, मेरा इतना सेलिब्रिटी होना चाहिए, सेलिब्रिटी लोगों के साथ कनेक्शन होना चाहिए, मेरे पास 5,000 फेसबुक में फ्रेंड्स होना चाहिए। बट जिंदगी की सच्चाई ये है दोस्त, रात को 3 बजे अगर आपको किसी की जरूरत पड़ी है, 5,000 में से 5 भी आपके पास नहीं आएंगे, वही 5 आएंगे जिनके साथ आप रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी जिंदगी में आपका फैमिली है। फैमिली को जितना हो सके टाइम दो, बच्चों को जितना हो सके टाइम दो, और बच्चों की नजर में एक रोल मॉडल बनो। अगर आप मुझे याद है एक बार एक सेशन में वो मैनेजर ने सभी लोगों से पूछा, अगर अभिषेक बच्चन से पूछोगे किसके जैसा बनना चाहते हो तो सब लोग बोलेंगे अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहेगा वो। हमारे बच्चों से पूछो किसके जैसा बनना चाहते हैं, वो भी अमिताभ बच्चन बोलता है, वो भी सलमान खान बोलता है, वो भी आलिया भट्ट बोलती है। हमारा नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमारे बच्चों ने कसम खाया है जिंदगी में कुछ भी बनूंगा अपने माँ बाप जैसे नहीं बनूंगा। सुबह से लेकर रात तक कंप्लेन करते रहते हैं, कभी बॉस के बारे में, कभी कंपनी के बारे में, कभी सरकार के बारे में, कभी सड़क के बारे में, कभी समाज के बारे में, कभी एलन के बारे में। हर सैटरडे को भी शांति से जीने नहीं देता, कुछ ना कुछ सिखाते रहता है। और ये 6 फुट 1 इंच वाला हरिहरन जो जूम पे 3 फुट दिखता है उसको लेके आता है, पकाते रहता है यार कुछ लोग। तो तो जिंदगी में क्या बनना है? रोल मॉडल बनना है। तो एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है कि लाइफ में खुश रहना चाहिए, ये सबसे बड़ा सक्सेस होता है। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है, क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी को जियो इस अंदाज में, जिंदगी को जियो इस अंदाज में कि लोग आपको देखकर कहे कि वाह जिंदगी कितनी खूबसूरत। कि आपको देखकर बच्चों को लगना चाहिए कि वाह जिंदगी कितनी खूबसूरत है, आपको देखकर अपनी पत्नी को लगना चाहिए जिंदगी कितनी खूबसूरत है, आपको देखकर अपने पति को लगना चाहिए जिंदगी कितनी खूबसूरत है। हमको देखकर वो लोग को लगता है जिंदगी बहुत बेकार है। हम कभी सेल्स ट्रेनिंग देते हैं तो सेल्स वालों को बोलते हैं खुशी खुशी कस्टमर के पास जाओ, नहीं तो कस्टमर आपका चेहरा देख के वैसे ही वो दुखी बैठा है, डबल दुखी हो जाएगा। तो जिंदगी में सक्सेस का मतलब क्या होता है? सक्सेस का मतलब होता है रोल मॉडलिंग। आजकल हमने एक सिद्धांत बना लिया, अगर ये बहुत अमीर है तो ये सक्सेसफुल है और यही रोल मॉडल है। वो पैसा कैसे कमाया, क्या किया, कुछ सही किया गलत किया, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं होता है। तो बैंक को लूट विदेश भाग जा, ये भी सक्सेस ही हुआ। कानून से बचने का सक्सेस, पैसा कमाने का सक्सेस। लेकिन तरीका क्या अपनाया? गांधी जी क्या बोलते थे? द मीन्स आर एज इंपॉर्टेंट एज द एंड। सो अभी तक हमने क्या बातें की कि जिंदगी में खुश रहना है, अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनना है, और काम तो करना है ना। और कंफर्टेबल होकर आप लाइफ में सक्सेस पा नहीं सकते, ये जिंदगी का सिद्धांत है। आज अमिताभ बच्चन आज अमिताभ बच्चन 81 ईयर्स के हैं, 81 साल। कोई सोच भी नहीं सकता ये आदमी 16 घंटे काम करे 81 साल की उम्र में। मुझे 25 साल के बच्चे, 30 साल के बच्चे लोग मुझे बोलते हैं, 30 साल के इंसान मुझे बोलते हैं मैं थक गया हूं लाइफ में, हद हो गई। आशा भोसले जी 90 ईयर्स की, आज भी गाना गाती है, स्टेज शोज करती है आज भी वो। अमिताभ बच्चन 81 में काम कर। देवानंद साहब जो अगर जिंदा होते तो 100 साल के होते, उन्हें अपने जिंदगी के आखिरी दम तक काम किया, 88 ईयर्स। एपीजे अब्दुल कलाम काम करते करते इस दुनिया को छोड़ गए, 84 ईयर्स। हम ऑलरेडी थक गए। तो सक्सेसफुल इंसान का और एक निशानी होता है, वो कभी थकता नहीं। हाँ, होता है कभी शरीर में थकावट। अभी जैसे मैं अभी सेशन ले रहा हूं, मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूं, ऐसा मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ।
पूरा दिन वर्कशॉप लेना पड़ता है, आदमी थक जाता है, थोड़ा आराम करता है, देन यू आर बैक टू द जॉब। सो सक्सेसफुल इंसान में एनर्जी होती है, और एनर्जी के लिए कुछ करता है, मेडिटेशन करता है, थोड़ा एक्सरसाइज करता है, और अपने थॉट्स को एक पर्पसफुल थॉट थिंकिंग रखता है। दो प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, एक जो कंप्लेन करते हैं, हर चीज को लेके कंप्लेन करते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक। भगवान बोलता है तू ठीक नहीं भाई, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मैंने बोलता बना दिया, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर, अगली बार तेरे को ठीक से बनाऊंगा, बट इस बार गलती हो गई, सॉरी। असेंबली लाइन से तू थोड़ा जल्दी निकल गया, क्या करूं, तेरे को पैदा होने का बड़ा जल्दी था, तेरे को बोला 2 महीना रुक जा, तो तू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बन गया, मैं गलती हो गई भाई। एक होते हैं कंप्लेन ओरिएंटेड लोग, सही चीजों के लिए कंप्लेन करो, जहां पे जरूरी है वहां पे कंप्लेन। दूसरे होते हैं चैंपियन लोग। चैंपियन लोगों की सोच अलग होती है। कंप्लेन वाले क्या करते हैं, कंप्लेन करने का बहाना ढूंढते रहते हैं। चैंपियन लोग अच्छा काम करने का, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। तो हर्षा भोगले एक एग्जांपल देते हैं सचिन तेंदुलकर का, कि 2003 वर्ल्ड कप फाइनल, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ 300-350 रन फाइनल में बना दिए। बहुत मुश्किल होता है आज के तारीख में भी, कोई 300 रन भी बना ले फाइनल में, उसको चेस करना बहुत बड़ी बात हो जाती। तो तेंदुलकर ने एक ड्रेसिंग रूम में सबको बताया कि सुनो बॉस, मैं समझता हूं 350 बहुत ज्यादा रन होते हैं, लेकिन हम लोग दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं, ये चैंपियन की सोच है। वो सचिन तेंदुलकर खुद जल्दी आउट हो गए, वो अलग बात है, और वो मैच हार गए, अब वो वर्ल्ड कप इंडिया ने नहीं जीता, वो अलग बात है। लेकिन इस चैंपियन की सोच, जो कंप्लेन होगा वो बोले अरे बॉलर लोग ने हमारा बैंड बजा दिया है, क्या बॉलिंग करते हैं, 350 बन गया, अभी कैसे जीतेंगे, खत्म हो गई मैच, शुरू होने के पहले ही मैच खत्म। और जो चैंपियन आदमी है वो ये सोचता है रास्ता कैसे निकाल। तो तेंदुलकर ने सबको बोला अगर 50 ओवर है और हर ओवर में हम कोशिश करें कम से कम एक बाउंड्री मारने की, तो 200 रन तो ऐसे ही बन गए। सी, जब सिचुएशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, चैंपियन लोग उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते। तो बोलो 50 ओवर में 350 बनाने हैं, एक एक बाउंड्री मारेंगे तो 200 रन तो वैसे ही बन जाते हैं, तो 200 तो आ गए, अब 150 बचा, वो सिंगल टू करके निकाल लेंगे। ऐसा हुआ नहीं, इंडिया हार गया मैच, कोई बात नहीं, लेकिन चैंपियन की सोच। एक बार इंडिया को कोई वर्ल्ड ट्राई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका के सामने मैच था, 40 ओवर के अंदर जीतना था फाइनल में जाने के लिए, ऐसा कुछ तो, या सेमीफाइनल में, फाइनल ही होगा। तो विराट कोहली ने सेंचुरी बनाया और भारत वो मैच जीत गया। तो विराट कोहली से पूछा हाउ डिड यू प्लान योर इनिंग्स, चैंपियन आदमी है। उसने बोला कि मैंने सोचा 2 T20 मैच खेल लें, 50 ओवर का तो मैच है ही नहीं है, 2 T20 मैच खेल लें, पहला 20 ओवर फिर दूसरा 20 ओवर। तो वी अचीव द टारगेट इन सब 35-36 ओवर्स। दैट्स हाउ अ चैंपियन थिंक्स। सो आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स आएंगे, आना ही है, जिंदगी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी प्रॉब्लम तो आएंगे ही कभी ना कभी, कुछ ना कुछ, रोज कुछ ना कुछ तो हम जूझते ही रहते हैं किसी न किसी चीज से। तो चैंपियन की सोच रखो कि रास्ता ढूंढो, क्या तरीका है, क्या कर सकते हैं, थिंक ऑफ अ क्रिएटिव वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, फाइंड वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो दो प्रकार के कॉन्वर्जेशन होते हैं हमारे लाइफ। एक होता है प्रॉब्लम कॉन्वर्जेशन, आप घर पे बैठो और अपने कुछ रिश्तेदारों को जमा कर दो और बिग बॉस के जैसे उनको एक रूम में डाल दो 4 घंटे के लिए, और आप बाहर से कैमरा में बैठ के मजे करो, देखो 4 घंटे में 3 घंटा 55 मिनट सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगे। 5 मिनट इसलिए डिस्कस नहीं होंगे कि उठ के कोई ना कोई कुछ काम करने या वॉशरूम जाकर वापस आ रहा होगा, तो 5 मिनट बच गया। लेकिन 4 घंटे में 3 घंटा 55 मिनट लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर, अरे इसकी शादी नहीं हो रही, उसको काम नहीं मिल रहा, ये बच्चे लोग सुधरते नहीं,
अरे ये सब पति लोग ऐसे ही होते हैं, अरे मेरी पत्नी मेरी बात मानती नहीं, मेरी सास ऐसी है, ससुर ऐसा। सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम कॉन्वर्जेशन कम करते हैं और पर्पस कॉन्वर्जेशन ज्यादा करते हैं। एक कंपनी के अंदर प्रॉब्लम कॉन्वर्जेशन क्या है? अरे ये मशीन ठीक नहीं चल रहा, ये कॉफी टाइम पे नहीं मिलता, अरे ये आदमी टाइम पे नहीं आता, अरे ये मेरी बात नहीं सुनता। ये प्रॉब्लम कॉन्वर्जेशन। सैलरी नहीं बढ़ती, सैलरी बढ़ी तो टैक्स स्लैब बढ़ गया तो नेट इनकम डाउन हो गया, गड़बड़ हो गई। तो जिंदगी भी मजाक करती है हमारे साथ कभी कभी। पर्पस कॉन्वर्सेशन क्या होता है? अच्छा प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ये पर्पस कॉन्वर्सेशन। अच्छा वो मेरी बात नहीं समझ रहा, चल मैं जाके उसके साथ बैठ के चाय पिलाता हूं, उसको समझाता हूं। कोलैबोरेशन करते हैं, कुछ दोस्ती बढ़ाते हैं, कुछ टीम वर्क बढ़ाते हैं। सो ये जो एलन साहब कर रहे हैं हर सैटरडे सबको जमा करके, ये पर्पस कॉन्वर्सेशन हो रहा है। कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश हो रही है। लर्निंग इक्वल टू अर्निंग, द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न, एज सिंपल एज दैट। अर्निंग नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, अर्निंग नॉलेज, अर्निंग पर्सपेक्टिव, अर्निंग इंटरनल ग्रोथ, ये सारी चीजें होती है। सो कंप्लेन ओरिएंटेड ना बने, ज्यादा पर्पस ओरिएंटेड बने, चैंपियन बने जिंदगी में। हम सबके अंदर इतनी प्रतिभा है, इतना पोटेंशियल है, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। और आपके पास जो स्पेयर टाइम मिलता है जिंदगी में, सैटरडे संडे अगर आपका छुट्टी हो या संडे छुट्टी हो, कुछ कंपनी 6 दिन काम करते हैं, आधा घंटा जरूर अपने लिए निकालिए। कुछ पढ़िए, कुछ मेडिटेशन कीजिए, कुछ वॉकिंग कीजिए। हफ्ते में वो जो छुट्टी का दिन है ना, आधा से 1 घंटा आपका समय होना चाहिए, जहां पर आप अपने आप से एक रिश्ता बनाए। हम सबसे रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, पत्नी से, बच्चों से, पति से, ससुर से, सास से, दामाद से, इससे उससे, कलीग से, दोस्तों से, पड़ोसी से। अपने आप से कभी रिश्ता बनाए? कभी आईने में 2 मिनट अपने आप को देखकर एडमायर किया? अरे भाई, और आप लोग सब, हम सब चैंपियन है लाइफ में। जिंदगी में इतनी विडंबनाएं आती है, इतनी तकलीफें आती है, फिर भी हम थकते नहीं, हम छोड़ते नहीं, हम कोशिश करते रहते हैं। तो हम चैंपियन हुए ना, हम चैंपियन हुए ना। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। किसी महापुरुष ने क्या लिखा है? आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशिया बनानी। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशिया बनाने की। छोड़ना नहीं है, मैदान छोड़ के भागना नहीं, टिके रहना है। आप देखिए बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़े स्टार बने, इरफान खान। 1990 से मैं उनके सीरियल्स देखते आया हूं, उनका करियर को ट्रैक किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, ये बड़े स्टार ओवरनाइट नहीं बने। ये राजेश खन्ना नहीं थे कि आज आज ये अपना आराधना बन गया और अपन कल सुपरस्टार बन गया। ऐसे नहीं बने वो लोग, स्ट्रगल करना पड़ा उन्हें। और आप देखिएगा सक्सेस जितना जल्दी आता है ना, गिरता भी उतना जल्दी है। राजेश खन्ना 4 साल में उनकी सुपरस्टारडम खत्म हो गई। उसके कई कई कारण है। अमिताभ बच्चन 50 साल के बाद भी सुपरस्टार है, क्योंकि वो सुपरस्टारडम मुश्किल से आया। तो इरफान खान को ले लीजिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लीजिए, ये लोगों ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बस तब जाके इतने बड़े स्टार बने। ऐसे ऐसे काम किए जो उनको पसंद नहीं था, लेकिन इसलिए किया। छोटे रोल्स किए, जो अच्छा नहीं लगता था वो भी काम किया, क्योंकि उनको पता था मैदान में टिके रहना है तो गेंदों को छोड़ना है और मार खानी है। चेतेश्वर पुजारा बॉडी पे ब्लो लेता है, मार मेरे को मार, सिंघम है हमारा हूं। तो यू हैव टू टेक द ब्लोज ऑफ लाइफ, देन लाइफ विल गिव यू अ रोज। और एक बार रोज आ गया, फिर से मार खाना है, फिर थोड़ा रोस आएगा। ये जिंदगी में संघर्ष चलता रहता है। तो इसको ओवरकम कैसे करें? इसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। ब्रेकिंग न्यूज, जिंदगी के संघर्ष है, कभी खत्म नहीं होती है ना। 2024 में फिर से लोकसभा इलेक्शन होगा, फिर से लोग संघर्ष करेंगे। ये तो चलता रहता है। प्रमोशन नहीं मिला तो तकलीफ, मिला तो बहुत बड़ा तकलीफ।
अब परफॉर्म भी करना पड़ेगा। सो जिंदगी को कैसे जिया जाए, कैसे जिया जाए? तो जिंदगी को जीने के लिए खुद को सहारा, खुद को ही अपना सहारा बनाना पड़ता है। और जिंदगी को जीने के लिए दिमाग और दिल का संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। कुछ लोग भावनाओं में बह जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं, और कुछ लोग इतना इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, इतना लॉजिकल हो जाते हैं कि उनको देखकर लगता है इसके अंदर कोई इमोशन है भी या नहीं है। सो इट इज अ बैलेंस बिटवीन द हेड एंड द हार्ट। फिर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दोनों के बीच में अगर एक्स्ट्रा वेटेज किसको देना चाहिए, दिमाग को कि दिल को, मैं कहूंगा दिल को देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी दिल से जिया जाता है। जिंदगी एक एक्सपीरियंस है जिसको आप लॉजिकली मैथमेटिकल फॉर्मूला में नहीं डाल सकते। जिंदगी एक अलग किस्म का अनुभव है, एक एक्सपीरियंस। अगर आप लोग चैट में वाह वाह लिखेंगे तो एक और शेर सुनाऊंगा दिल को लेकर। शेरो शायरी का लास्ट 2-3 साल में बहुत मेरे को चस्का लगा हुआ है, बड़ा मजा आता है। लोग बोलते हैं तुम मद्रासी है, अय्यर है, इतना हिंदी कैसे बोलता है। तो मेरे YouTube चैनल में मैंने एक सेक्शन शुरू किया है, उसका नाम है अय्यर हिंदी बोलता है। तो बशीर बदर साहब का भी हाल ही में एक शेर सुना था मैंने। और अच्छा, ये सब नॉलेज आता कहां से? मैं तो खुद तो पैदा नहीं किया। यूट्यूब इतना मजेदार चीज है, ये यूट्यूब क्या नहीं सीख सकते आप फ्री में, लेकिन समय देना पड़ता है थोड़ा सा। 10 मिनट आप रोज कोई अच्छे वक्ता को सुनिए। मेरे चैनल में 500 वीडियो है लगभग, कुछ तो 2-4 तो सुन लिया करो यार, सब्सक्राइब कर लिया करो। कैप्टन रघुरामन को सुन रहा हूं आजकल में, कुमार विश्वास जी को तो मैं सुनता ही रहता हूं, जावेद अख्तर साहब को मैं सुनता ही रहता हूं। ऐसे अमिताभ बच्चन के स्पीचेस, इंटरव्यूज को मैं देखता रहता हूं बहुत। देयर आर मेनी अमेजिंग पीपल। ब्रायन ट्रेसी को कभी सुन लिया। सब लोग से हर चीज लेना नहीं है, बट कोई एक अच्छा आइडिया मिल जाए। व्हाट एन आइडिया सर जी। ये पूरे सेशन में, अभी जो अगले 5 मिनट में मैं खत्म करूंगा, जो ये पूरे सेशन में अगर आपने 2 आइडिया पकड़ लिया तो आपका सुबह मस्त हो गया लाइफ। सारा चीज इंप्लीमेंट नहीं करना है, 2 चीज को पकड़ के काम करना है। व्हाट एन आइडिया सर जी, एक आइडिया मिल जाए लाइफ में, क्या बढ़िया है। तो दिल से जिंदगी जियो, पैशनेटली जिंदगी जियो, एंथुजियास्टिकली जिंदगी जियो। तो बशीर बदर साहब का एक शेर है, वो कहते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जब आपस में लोग लड़ मरते हैं और एक दूसरे का प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं या कोई और तरीके से नुकसान करते हैं, तो वो कहते हैं तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। वाह, क्या कहा है, क्या बात है। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनाने। उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनाने। लोगों को लगता है दिल है तो मतलब बढ़िया है। नहीं, उसको डेवलप करना पड़ता है, उसमें मोहब्बत भरनी पड़ती है, उसमें प्यार भरना पड़ता है, उसमें सहानुभूति भरनी पड़ती है, एम्पैथी लाना पड़ता है, तब जाके दिल दिल कहलाता है। दिल से काम करना पड़ता है, दिमाग से नहीं। इतना पगार में तो इतना ही काम होता है, दैट इज नॉट द वे टू लीड लाइफ। लाइफ में देना बैंक बनना है, लेना बैंक नहीं बनना है। पहले देना है और अधिक से अधिक देना है, जितना मिलता है उससे ज्यादा देना है। मुझे देना बैंक बहुत पसंद है, क्योंकि वो बैंक ऑफ बड़ौदा को खुद को दे दिया उसने, और बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया। तो हाल ही में मैंने एक टेडेक्स वीडियो देखा जो आपको देखना चाहिए, टेड टॉक। टेडेक्स नहीं, मेरे ख्याल से ओरिजिनल टेड टॉक है, बाय रोहित देशपांडे, हु इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर इकोनॉमिस्ट। और उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एक केस स्टडी प्रेजेंट किया है ऑन द ताज 27/11 अटैक्स। एलन, यू शुड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन।
फ्रॉम यूट्यूब, आई विल शेयर द लिंक विथ यू। क्या मतलब, मैं देख के हैरान हो गया कि कैसे ताज के एम्प्लॉइज ने, 600 जन ने मिलके करीब करीब 1700 लोगों का जान बचाया उस दिन। कैन यू इमेजिन? अपने जान को खतरे में डाल, सिर्फ उनको पता था ये होटल से बाहर कैसे निकल है, लेकिन कोई नहीं निकला, और जो बाहर चले गए थे वापस आ गए। अपने ऊपर गोली खाया ताकि उनका कस्टमर को कुछ ना हो, उनका गेस्ट सुरक्षित रहे। 34 people died in that attack. 17 of them were the Taj employees. 50%. अब जब हम इस तरीके की चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, अगर थोड़ा भी हमको लगता है मैं बहुत महान आदमी हूं, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि क्या मैं किसी और के लिए गोली खाऊंगा? आई रियली डाउट इट। सो आजू बाजू में देखिए, सक्सेसफुल लोग आजू बाजू में नजर घुमाते हैं, वो देखते हैं कि बॉस ये इंसान क्या काम कर रहा है। मेरे 14 साल के एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस में दो बातें जो बढ़िया बढ़िया हुई मेरे साथ, वो ये है, भारत घूमने को मिला, क्योंकि अलग अलग जगह जाना पड़ता है ट्रेनिंग करने। भारत देखने को मिला, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, पार्टिसिपेंट्स, आई एम अमेज्ड, आई लर्न फ्रॉम देम, दे इंस्पायर मी। और दूसरा, ये जो अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं और अपनी तैयारी के लिए तैयारी करना पड़ता है, अपने सेशन को डिलीवर करने के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ देखना पड़ता है, दूसरे प्रोग्राम्स अटेंड करने पड़ते हैं, जो सीखने को मिलता है, दैट इज जस्ट अस्टाउंडिंग, अमेजिंग। तो जब मैंने ये एक सेशन के दौरान एक ये ताज वाला वीडियो देखा, फिर मैं घर में आके वो वीडियो को पूरा वापस देखा, आई सेड वाओ, ये कैसे मैंने नहीं देखा आज तक। लोग ऐसी ऐसी स्टोरीज बताते हैं अपनी जिंदगी के बारे में। हमारी जिंदगी बहुत मस्त है यार, बहुत बढ़िया है। हमको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि शरीर अच्छा है, मन अच्छा है, परिवार ठीक है, काम चल रहा है, ठीक ठाक पैसे बन रहे हैं। हाँ, कमियां रहेगी, वो कमियों को दूर करने के लिए आपको काम करते रहना है, लेकिन जो है उसके लिए हमको कृतज्ञ होना चाहिए उसकी तरफ। वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव। सो वी लर्नड अबाउट हैप्पीनेस बीइंग मोर इंपॉर्टेंट देन सक्सेस। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, लोगों ने हैप्पीनेस को बना दिया महंगा और सक्सेस को बना दिया सस्ता। होना उल्टा चाहिए। कुछ भी कर, सक्सेस ला। और हैप्पीनेस के लिए, जब तक बड़ा घर नहीं बनेगा मैं खुश नहीं रहूंगा, जब तक बड़ी गाड़ी नहीं आएगी मैं खुश नहीं रहूंगा, जब तक प्रमोशन नहीं होगा मैं खुश नहीं रहूंगा, जब तक मेरे बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में नहीं जाएंगे मैं खुश नहीं रहूंगा, जब तक मेरी शादी नहीं होगी मैं खुश नहीं रहूंगा। सो हैप्पीनेस के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, वैसे ही खुश रहना है। हमने उसको बना दिया बहुत महंगा। इतना महंगा है ही नहीं। ऑल यू नीड टू बी हैप्पी इज टू स्माइल 10 times a day, दैट्स ऑल, यू आर हैप्पी। अरे कैसा चल रहा है जिंदगी? कैसा चलेगा, कट रहा है। क्या बोल रहे हैं यार? अच्छा चल रहा है बोलो ना, भले अच्छा नहीं चल रहा है, बोल तो से अच्छा चल रहा है। सो हैप्पीनेस छोटी छोटी बातों में होती है। ऐसे लर्निंग सेशन में आए, साथ में बैठ के कटिंग चाय पिया। मुंबई में बड़ा कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है, कटिंग चाय। वहां पे भी पैसे की बचत, 10 रुपए का क्यों पीना है, तो 5 रुपए में खुश हो जाओ। गर्लफ्रेंड को ट्रीट देना है, 500 रुपया खर्चा होता है। अपने आप को ट्रीट देना है, 10 रुपए में काम हो जाता है। सो डोंट मेक हैप्पीनेस एक्सपेंसिव।
सक्सेस चीप, लोगों को चूना लगा, किसी तरह पैसा कमा, अपना जेब भर और मजे कर। तो ये सस्ता बना दिया सक्सेस को। सक्सेस के लिए परिश्रम करना पड़ता है, सक्सेस को टिकाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, सही तरीके से, एथिकल तरीके से काम करना पड़ता है। और हैप्पीनेस के लिए इतना सा मेहनत करने की कोई जरूरत है? हंसो यार, खुश रहो, गाने गाओ, है ना। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मरना इन्हीं पलकों के तले। अभी से अपने पत्नी के लिए मत गाओ, अपने गाने के लिए, अपने काम के लिए ये गाना गाओ। पत्नी के लिए गा लिया, प्यार हो गया, अब साथ में है, भगवान की कृपा है, बट लव योर वर्क। सो आई वांट टू एंड बाय सेइंग द शॉर्टकट टू हैप्पीनेस एंड द शॉर्टकट टू सक्सेस इज यू हैव टू लव योर वर्क। जैसे कोई इंसान से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उतना ही बेइंतहा मोहब्बत, उससे भी कई ज्यादा हमको अपने काम की तरफ होना चाहिए। काम ऊपर नीचे होगा, काम को कभी गाली नहीं देगा। कभी एक दिन अच्छा होगा, कोई दिन अच्छा नहीं होगा, लेकिन काम है तो जिंदगी है, काम है तो परिवार है, काम है तो आइडेंटिटी है, काम है तो एस्पिरेशन है, काम है तो एम्बिशन है, काम है तो सक्सेस। सो लेट मी एंड बाय सेइंग, एलन, हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास नहीं करना। हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास नहीं करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। सो फ्रेंड्स, Alan, thank you so much for the opportunity, and I hope I could add some value to all of you, and God bless all of you, and do take good care of yourself. Thank you very much. Thank you. सबकी तरफ से Thank you, sir. हम लोग वाह वाह कहने के, मतलब ये करने की, मतलब सबकी तरफ से मैं वाह वाह कहना चाहता हूँ हरिहरन साहब। वाह वाह की हर एक नौबत आई इस मीटिंग में। एवरी मोमेंट वाज दैट वाह वाह मोमेंट। इंग्लिश में कहो तो वाह वाह मोमेंट, Wow. हिंदी में तो वाह वाह मोमेंट। तो बट आई थिंक अमेजिंग अमेजिंग, यू नो, as expected, as anticipated, nothing new for me, but for people who have heard you for the first time, of course, Rajesh Hariharan Saab is here with us today. Hariharan Saab ने भी आपका पहले Yes, I could see that he was commenting. Thank you so yeah. much. So, but yes, I mean, thank you so much for that insight that you gave about life, and for making, you know, making it easy to understand. I mean, it's life is so simple. Sometimes we make it complicated, and we don't need to make it complicated. I think one thing that I picked up from this conversation is knowing is nothing, doing is everything. And I think that is a star liner for the day. Knowing is nothing, doing is everything. तो हमें अभी जाके बहुत कुछ करना है। सैटरडे मॉर्निंग ही है, वीकेंड भी आया नहीं है हम बहुत सारे लोगों को, but we really enjoyed this session, and on behalf of everyone here I would like to say thank you. But I give an opportunity for everyone also to say a word or two. You can open up your mics and please speak, and then we'll have a final one click of your photograph if you can put your cameras on at the end. But please feel free to say one word. A word of appreciation is always welcome. Thank you. So thank you very much. Yeah, sorry. Go ahead, sir. Hariharan Saab, this is Rajesh Hariharan. Hi. You've always been an inspiration. This is the second time we've had a chance to hear Is you. that okay? You always keep inspiring us. Thank you so much. Continue. When did we interact before? याददाश्त मेरा बहुत कम है, बट अच्छा। मुझे आपका चेहरा बहुत अच्छी तरह याद है, गोल गोल चेहरा आपका। हरिहरन साहब, आपने लिज मॉन्टेजेंस में किया हुआ है सेशन, सो आई थिंक yes. Rajesh is referring to that. Okay. So मेरा एक हम्बल सजेशन है कि आप इतना अच्छा बोलते हो, तो हमको आपका मतलब ये
अवसर होना चाहिए कि आपको रोज सुने, तो मैं एलन साहब को बोलूंगा, क्योंकि एलन साहब बहुत कनेक्टेड है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। तो रेडियो मिर्ची में आपका हर दिन 15 मिनट सुनने को मांगता है हमको। क्या बात है। थैंक यू हरिहरन साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एलन। Thanks, Rajesh. Thank you for joining us today. Thank you. Thank you, Yeah, Mr. Hariharan. Hariharan. This is Pramod from Oman. It was Hi, nice sir. listening to you and very encouraging. God bless you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. सक्सेना साहब आपको टोक रहे हैं लोग, लेकिन अभी मौका है. Yeah. Thank you very much, Hariharan sir. Good morning. Good And morning, it's sir. really good to see. It's my first chance to such a smiling face, right? Thank you. So it's really very good to see, not only by listening, by seeing it gives a happiness, right? When you see that, like, you're only quote when people सोचे कि बंदा इतना खुश क्यों है, right? So it's really very nice. Thank you very much for having you. Thank you, here. sir. Thank you, sir. Thanks, Alan. Thank you, sir. और कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज कह लीजिए, या फिर नहीं तो हम लोग. नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा हमको। ग्रेट ट्रेनिंग सेशन। प्रोग्राम जो है ना काफी एंजॉयबल था और जोश से हम भर गए आज। जोश और उमंग और हिम्मत। Thank सो you. फैंटास्टिक अय्यर साहब, Thank you. आपका डिलीवरी जो है ना बहुत ही बेहतरीन है, Thank you, sir. Thank you very much. माशाल्लाह। Thank you, sir. Thank you so much. Okay, thanks guys. Thanks for joining. Pramod ji, thank you. Thanks. Mukesh, thanks for coming online. Great to have you. Bala, thank you. Suhas, Mustafa, Vikram, Nurul Saab. Rajshri, you're traveling and you still made it. Thank you so much. Pramod ji, all the way from Oman. Thank you. Vijay from Dubai. Thank you so much. Rajendra, Rishabh. I don't know who real me is. कोई Chinese बंदा होगा. Neeraj. Saxena Saab, thank you. Jairat Saab, Khan Saab, Dinesh. If I've forgotten any names there, I'm sorry, but wonderful having you. And Rajesh, Hariharan Saab, Thank you. made our day full of energy, as Khan Saab said. अभी जोश से अभी आगे काम करना है. Thank you very much. Thank you, Alan. Thanks. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Have a nice day. Nice weekend.